Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. Welcome to my YouTube channel Merchant Navy Decoded. Today I have got someone all the way from Korea, Captain Sham Paliwal. जी हाँ. And this journey is going to be really very inspiring for all those people जो कि कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं. क्योंकि इस जर्नी के अंदर आप जानेंगे कि why a captain at 27, that too a master of LNG carrier, quit sailing. Why? Then how did he build that business जो कि इन्होंने $1 million में सेल किया? What was that business? वो भी maritime related. Then he built a failed venture as well, because we are going to talk about failures as well. What was that failed venture? Then why did a master thought of opening up restaurants in Korea, and not just one? Today he has got 16 restaurants, and the best thing is वहां पर नितिन गडकरी से लेकर मोदी जी तक आए हैं. So we'll talk about that. And then again he did not stop कि भाई अब restaurant बन के खत्म. He is also today, he has also developed a course on training course on LNG loading masters, for which he is roaming with his team worldwide and developing these courses and training people out there. He has got his own yacht. He's got a private pilot license as well. Then he is the governor of Indian Chamber of Commerce in Korea. He is also visiting faculty at Korea Maritime University. He is chairman and MD of Moim Consulting, which is in pre-purchasing survey inspection of ships. He has his जिन लोगों को बियर का शौक है, he has got his own beer brewery as well, जहां पर 90,000 bottles per month बनती हैं. Then in 2019, the highest, I would say the peak of his career, when government of India called him कि प्रवासी भारतीय दिवस में he was invited, where he was representing Indians who have done wonders in Korea. Can you imagine a captain, a maritime industry guy doing that? I could have never imagined that. Then, if you have ever been on Facebook and you've seen that page called Job Ships, then nobody else but our own Captain Sham Paliwal has been doing that as his social responsibility for so many people out there. And today 85,000, 86,000 people are there, जिसका अब मैं भी admin बनूंगा. So guys, a man with a lot of hats, let's know his journey. श्याम पालीवाल जी, लिस्ट बहुत लंबी हो जाती सर, so I had to cut it short and अब start करते हैं. First of all, sir, thank you very much, sir, for joining us on Merchant Navy Decoded. Thank you for having me, Pradeep. Thank you. So, sir, let's go back to the beginning. So, sir, अभी you became a captain very fast, and आपका एक वीडियो था जिसमें आपने बताया कि यार I was on loyal to the company and loyal to the ship, not to the company, and that is why I became master very soon. Now, the next question is, when you became so early, success was there in your hand, and you must be earning very good as a LNG captain. Why did you quit sailing? I just met my Korean wife during a sea trial. So we were doing sea trial of the world's largest LNG carrier, QMax, which is about 266,000 meter cube cargo capacity. So my wife was a DNV surveyor on that sea trial and gas trial. So just a few days ago, my wife went again on a gas trial, met my friend who is a chief engineer. So he called me from the gas trial and told me, "Oh, is that your wife?" So I said, "Yeah, she's my wife," and I met her on a sea trial. So I met my wife, and she's now a principal surveyor with DNV. So at the time, she was a DNV surveyor during that sea trial before delivery of the ship. So then I fell in love. Then I got married. Then I just decided to settle in Korea. And then after I had my son, I just fell in love with my son as well. Then I felt that I cannot be away from him. I should do something else, and so that I can be with my family all the time. So then I just at the time this Somali piracy was a problem. So being an entrepreneur, you have to find a problem and then offer a solution, and then you can make money. This is like a basic entrepreneurial journey. So what I thought was we can rig a high pressure water jet machine, just like a tank cleaning machine, on the ship side railing, and then with the high pressure water jet from the fire hydrants or from the tank cleaning system, we can try to protect the ship from the pirates, prevent them from coming on board with a rope and all. So I designed and patented this machine, and then thankfully there was good demand. Somali pirates were in at that time, so I could sell 5,000
of these machines. So I sold them to SK Shipping, K Line, American Eagle Tankers. So all these companies were my customers, and many of the ships still have those machines. So they install when the vessels pass through high risk area. So for this patent, I got that Lloyd's and Innovation of the Year award, and my article was published in Merex at that time. So you can check that article as well. So then finally this. Every company they started using armed guards, so then the product demand for the product decreased, and so many other companies also started making this product because patent protection is not so good in China. So the Chinese machines were much cheaper, so that's why then we just I decided to sell the company. So then I sold it for $1 million to a company called Tank Tech here. That's how I So, made my first. so जब first $1 million came to in your account, could you believe Yeah. यार कि मैं जहाज पे तो कभी इतना नहीं कमा सकता था, if I am not mistaken. मतलब it would have taken you at least 10 years and that too completely saving all that money. So it must have been an amazing feeling at that time यार, wow. ये तो सोचा नहीं था कभी. I just came to know that I have to pay so much tax also. So मैंने ये नहीं सोचा था कि इस पे इतना टैक्स भी देना पड़ता क्योंकि एक जहाजी की तरह हमें है. टैक्स का नहीं पता you होता know कि टैक्स. जहाज पे तो टैक्स नहीं देना होता. So that's the first time I realized कि tax is also a trouble. ओके. क्योंकि जहाज पे तो कभी टैक्स दिया ही नहीं जहाज पे कभी टैक्स नहीं देता, ये बिल्कुल सही बोला आपने. तो सर चलिए कुछ पैसे बने, अच्छे खासे बने. था. एंड देन यू वेंट, so this was your first successful venture जिसमें आपने कुछ बनाया, and then you sold it at a very good price as well, and then you faced a failure and that was marine pad. What is it, this marine pad जो आपने बनाया और ये क्यों नहीं चला, अगर थोड़ा बता पाए. This marine pad was like a tablet which can be used for filling up all the farms on board. I was trying to digitize the ship, but I think I was too ahead of my time. It was in 2010, 2011. So 2000, at that time, everybody was filling the form by hand and writing, tick tick. So Even everybody today will fill also. up. Yeah, for example, they will just fill a enclosed space entry form after they have already done everything, just to do the paperwork in order. So to avoid that and to digitalize everything, I made this marine pad. So you fill up the form in the pad, and every tick has a timestamp, so it knows that when the tick was marked. So that's how we can have a good record for any auditor, and site inspector and everything, and we can have a good database and a good documentation for any vessel as a digital format. So that was the concept of this. OPRAS, Operational Planning and Risk Assessment System. I called it OPRAS. Okay. So, And why did you think कि इतना सक्सेस नहीं हो पाया? It was ahead of its time. आज भी नहीं है. It is not there. So what's it? This the reason to fail, और आपको लगा कि यार this will work? Maybe perseverance की कमी थी, या you did not market or you did not do the survey well? Because problem तो आज भी exist करती है सर. Because I have seen this happening, I have heard this happening, where काम होने का, क्योंकि आजकल you know how the vetting thing works. So you have to make sure that all the checklists are ready. अब वो काम किया नहीं है because PMS में you know how it works. So बाद में कई बार checklist बन रही होती हैं. So it was the problem that time also. Problem is today as well. So why didn't work? Still थोड़ा सा अगर आप सोचें तो बताएं तो. I think that the shipping industry is very slow to change. अभी जहाज भी होता है उसको हेल्म लगाते हैं, तो वो कितने टाइम के बाद तो वो हिलता है. So the ship and shipping companies, they work in the same way. They are very reluctant to change. I So जो like चला it. आ रहा है, जो चलता है, takes so long to change and adopt new things. हैविंग सेड दैट, So जैसे शिप पे जाते हैं हम, सॉरी सर आपको कट कर, हैविंग सेड दैट एक uh-huh. अच्छी चीज आई. जैसे शिप पे जाते हैं तो कोई चीज चल रही है, तो 4 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, चीफ एयर कैप्टन वही सेम आ रहे हैं बात, यार ये चीज ऐसी चल रही है, चलने दो, इसे छिड़ना का नहीं, क्यों चल रही है, हम ये प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहे हैं, कई बार हम डिस्कस नहीं करते हैं, बस चल रहा Yes, है yes. चलने दो. ओके. Thank सर you. ये चलो, जब ये फेल हुआ तो आपको दुख लगा, बट अगेन रेस्टोरेंट, सो 2013 यू स्टार्टेड योर फर्स्ट रेस्टोरेंट बाय द नेम ऑफ बॉम्बे ब्रॉ. तो ये रेस्टोरेंट खोलने का सिस्टम कहाँ से आया है, पहले तो ये बताइए, व्हाई अ रेस्टोरेंट. एक्चुअली क्या थी कि मुझको खुद भी खाने की प्रॉब्लम होती थी. अब घर पे तो कोरियन वाइफ, अब कहाँ से इंडियन खाना मिले. तो बाहर भी जाता था, तो मैंने कहा यार जो 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 मेरी प्रॉब्लम है वो बाकी इंडियंस की भी होगी यहाँ पे.
तो मैंने कहा ये भी दिस आल्सो ए प्रॉब्लम, क्योंकि इंडियन लोग मतलब वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं या इंडियन खाना ही प्रेफर करते हैं, तो उसमें काफी डिफिकल्टी। तो मैंने कहा कि इसका भी एक सोल्यूशन निकालता हूँ। बिकॉज आई वाज बेस्ड इन कोजे, उस टाइम वहाँ पे एक ही इंडियन रेस्टोरेंट था। तो मैंने कहा कि मार्केट इज बिग इनफ फॉर टू रेस्टोरेंट्स, तो आई शुड स्टार्ट वन। तो उसके लिए फिर मैंने पता किया कि रेस्टोरेंट खोलते हैं कैसे। तो उसमें भी मुझे काफी चैलेंजेस आए। तो मुझे पता चला कि एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी कंप्लाई करनी होती हैं, फायर रेगुलेशंस भी कंप्लाई करनी होती हैं। रेस्टोरेंट में भी इमरजेंसी एग्जिट बनाना होता है, जिसकी इतनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। उसमें फिर मैंने वो इमरजेंसी एग्जिट बनाया, उसमें सीढ़ी भी बनाई। तो इट टुक मी लाइक 5 months टू ओपन माई फर्स्ट रेस्टोरेंट। नाउ आई कैन ओपन ए रेस्टोरेंट इन लेस देन ए month. So it was a learning in the beginning because I could not get things done and I did not know the rules and regulations. तो सर बट आउट हियर आई कैन सी दैट इट हैज परसिवरेंस दैट हैज ऑलवेज पेड ऑफ। यू थॉट कि ये प्रॉब्लम है, अब तो करना है। फिर चाहे 5 महीने लगे, 4 महीने लगे, रिसर्च करते रहेंगे, लेकिन करना है तो करना है। दिस वाज द बेस्ट थिंग। सो यू, आई गेस यू हैव द बेस्ट पॉइंट, दैट द बेस्ट थिंग दैट यू गॉट इज आर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, गेटिंग थिंग्स डन। इट टुक यू 6 months बट यू डिड इट, यू डिड नॉट गिव अप, अरे ये तो नहीं हो पाएगा। Yes, yes, exactly. So my favorite bird is crow. Crow is known for its perseverance. So it doesn't give up. It is even chasing the eagle and it snatches its food from the eagle also. So perseverance is a key in any venture. तो सर व्हाई डिड यू नेम योर रेस्टोरेंट बॉम्बे ब्रो? मतलब बॉम्बे तो समझ में आता है, ये ब्रो कहाँ से आया? BRAU, ब्रो। एक्चुअली मुझे बियर का पहले से ही शौक था। तो मैंने सोचा था कि इसमें ना इंडियन फूड विद विद क्राफ्ट बियर। तो उस टाइम मैंने एक छोटी सी ब्रूअरी भी लगाई थी। तो इट वाज क्वाइट स्मॉल, जैसे वहाँ होती है गुड़गांव में जो है, उस तरह की ब्रूअरी भी मैंने लगाई थी उस टाइम। तो ब्राउ इज अ जर्मन वर्ड फॉर बियर, ब्रूअरी। सो इट वाज अ इंडियन रेस्टोरेंट विद अ ब्रूअरी। ओके, तो यहाँ पर खाना, तो द फूड दैट यू सर्व इज इंडियन ऑथेंटिक, ऐसा किस तरह का फूड यू सर्व आउट हेयर, सो पीपल, अगर कोई कोरिया आता है तो पता चले, चलो जी अपने कैप्टन साहब की रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ पे। हाँ, बहुत सारे सी फेरर्स भी आते हैं, वो जो शिप्स की डिलीवरी आते हैं वो काफी आते हैं हमारे रेस्टोरेंट। तो उसमें क्या है कि मतलब हम लोग ऑथेंटिक इंडियन फूड सर्व करते हैं। हमारा स्लोगन है फ्रेश एंड स्पाइसी। हमारे शेफ सब इंडियन हैं, तो दे आर नॉट पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, और दे आर ओनली इंडियन। दे आर ऑल फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड इज नोन टू गिव वेरी गुड शेफ्स। अच्छा So some of them are from Gadwal and of them are from even the hills. So so yeah, so I mean, they're quite good chefs. So of course, if you come to our restaurant Bombay, then you will get authentic Indian food. ओके सर, जस्ट आउट ऑफ द ब्लू दिस क्वेश्चन हैज कम अप आज की डेट में सर। इट हैज बीन, मतलब 2009 से तो आप हैं वहाँ पे, 2000 कब से, 2007 से आप कोरिया में सेटल्ड हैं? हाँ, 2007 से ही मैं तो इधर, सर 2007 16 साल में हो मैं गए, वो। अब तो आप कोरियन बोल लेते होगे बिल्कुल फ्लुएंटली, यू माइट बी एबल टू हाँ, मैं स्पीक कोरियन में फ्लुएंट। ईमेल भी करता हूँ, लिखता हूँ, सब क्या कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। है। ओके अभी मैंने सर। कोरियन में ईमेल ही की है तुम्हारे से मिलने से पहले। ओके थोड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग छोड़ लगता है, पर कर लेता ओके सर, आपके रेस्टोरेंट में हु विच ऑल सेलिब्रिटीज हैव कम? फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है मुझे, और मैं उनकी फोटोज यहाँ पर देखना चाहता हूँ स्क्रीन पे। एंड सेकंड थिंग इज कि डू सी फेयरर्स जो कि वहां पर आते हैं, उनको पता है कि ये अपने कप्तान साहब हैं, जहाजी है, उनका रेस्टोरेंट है? अगला क्वेश्चन। और नहीं पता तो क्यों नहीं पता? है। अभी क्या है कि जैसे हमारे रेस्टोरेंट पे तो सभी आए हैं, राजनाथ सिंह आए हैं, नितिन गडकरी आए हैं, और पीएम मोदी रेस्टोरेंट पे तो नहीं आए, बट हमने उनके लिए केटरिंग की थी, जहाँ वो ओके ओके जिस सूट में वो रुके हुए थे, वो हमने खाना भेजा था। ओके तो रेस्टोरेंट पे तो ये सब आए, इनकी फोटो, निर्मला सीतारमन भी आई है अभी। और वो सर, ये ओम फोटोज बिरला मैं देख जो लूंगा। ओके, ये अभी सब है। अभी स्पीकर हैं, ओम बिरला भी आए थे। ओम बिरला, निर्मला सीतारमन, बेसिकली ऑल पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी तो फिर आते ही रहते हैं, वो कपिल शर्मा, और जब भी ये फिल्म फेस्टिवल होता है तो तो। कोरिया कोई आएगा तो बॉम्बे ब्रो पहुंच जाएगा, हिंदुस्तानी हाँ भाई चलते हैं, हैं? सो दैट इज द हाँ, थिंग। मतलब जैसे फिल्म फेस्टिवल में जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो आ जाते हैं, या जो पॉलिटिशियंस यहाँ पे उसमें बिजनेस टूर पे आते हैं वो आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, जो भी है, मतलब रेस्टोरेंट खाना तो सबने ही खाना होता है, तो ओके उनकी हम केटरिंग करते चलिए सर, रेस्टोरेंट का बिजनेस में टुडे यू हैव गॉट 16 रेस्टोरेंट, जिसमें 12 आपके खुद के हैं, 4 आपके फ्रेंचाइजी मॉडल पे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। बट देन अगेन, ये व्हाट इज देयर इन योर, मतलब व्हाट गोज अराउंड इन योर माइंड कि चलो एक चीज अच्छी चल रही है, इसको और बढ़ाते हैं, बट यू स्टार्टेड अनदर थिंग कि यार मैं आई विल स्टार्ट विद दिस LNG लोडिंग मास्टर ट्रेनिंग कोर्स। मतलब
are you like a I have built this thing, I'll go to another thing. तो you are like a serial entrepreneur जो कि एक चीज दूसरी चीज एक चीज पर ठहर के उसको नहीं बढ़ाना सोचने की जगह एक और बढ़ा बनते चल बनाते चले जाओ न्यू challenges every day new thing. So what why did you start with this LNG loading master training course? I think, yeah, this is like my personality, being my key, skill is, taking on new challenges and developing new products and services. So I developed, this LNG Loading Master training program because I thought that there is no program in the world catering to the LNG Loading Masters. Because when I was trying to look for a course, I could not find one. So then I thought, oh, there. If I develop something like that, then maybe somebody will buy it. So like that, I developed, and then fortunately, I trained all the LNG terminals. So almost, everywhere in Australia, East Coast, Perth, and Indonesia, Tangguh LNG, and Malaysia, Singapore LNG, Brunei LNG. Basically, all you can think of all the even Hiranandani HLNG I have trained. HLNG in India, in Wow. your place, in Dubai, that FSRU, Abu Dhabi FSRU, and then in the Turkey, Rotterdam, Finland. So like everywhere, Hamina LNG in Finland. So everywhere, so Rotterdam, Gate LNG So terminal. you again found a problem, you found a solution, and it's a very niche market, but you went for it. चलो सर ये भी चीज हो गई. अब आपको बियर का शौक था, जरूरी था कि दैट यू हैड टू ओपन योर ओन ब्रूअरी, ये जरूरी था आपके लिए कि इन 2017 अंदर सेटअप अब मैं अपनी ब्रूअरी स्टार्ट करूंगा एंड यू स्टार्टेड योर ओन ब्रूअरी एज वेल बाय द नेम ऑफ 993 बियर व्हिच इज मेकिंग 90,000 bottles per month, 30,000 liters of beer every month. Yes, I mean, what I was always passionate about beer, and I really liked, Vijay Mallya. I don't know if people like him or not. I don't care about it. I mean, but his beer is still good, and he used to sell a lot of beer. So that beer, Kingfisher. So that's why and basically it's just love for beer. So then I discovered that this brewery in Czech Republic is in operation for 1,000 years. So it is in a monastery in Prague, in Czech Republic, and they started in 993 AD. So and they're still brewing beer. So for any business to last for 1,000 year, I decided the beer must be good. So then I got the recipe and the technology and the brewing equipment from Czech Republic, and then I started this brewery here in Korea. Wow. So, sir, today you have a brewery, you have got a master loading LNG loading master training course, you have got your own restaurants, you have already made a business and sold it for $1 million. Apart from that, you have got this Moim consulting company from where you started this business of making those sophisticated machines for keeping the Somalian pirates away. So, what is this Moim consultancy about? Matlab, what is Moim consultancy doing today? So we have some surveyors where we do the pre-purchase inspection, marine warranty survey. For example, today we have like 3 surveyors on board in different ports in China and Korea. Just if somebody wants to buy a ship, they want to do pre-purchase inspection, we do it. We do for the insurance company, for the banks, before they give a loan to based on the asset, they want to monitor the condition of the asset. So, all the kind of third-party inspections for P&I entry surveys. So we do all this kind of third-party survey, which are not done by the class or anybody else. So you are today, even after so many years of quitting sailing, आज भी आपको shipping में you are there doing these courses, then the Moim consultancy, along with that running a brewery and a restaurant. ग्रेट सर, बताइए आप कैसे करते हैं ये? आपसे कोचिंग लेनी पड़ेगी मुझे आराम से, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ ताकि जानता रहूं बाद में हाउ डू यू डू दैट. बट नाउ in Indian circle in Korea, you have a big name. But you are the governor of Indian Chamber of Commerce in Korea, and आप regularly वहां पर you do these events of Holi, Diwali. ये क्या है सर, ये बताइए. How did you again a problem or a solution? ये कैसे हुआ? अभी हमारी community है, we are business, so we have to be together, then we can be strong. So वो दूरदर्शन पे देखते थे, वो एक लकड़ी होती है, वो सब लकड़ी हो जाती है, वो चिड़िया जो होती है वो नेट लेके उड़ जाती है. So we need a unity is strength. So we thought that we have to
get the Indian businesses in Korea together, so we can lobby with the government and ask for favorable regulations. तो उसके लिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना था. And we support all this Diwali and Holi festivals. We contribute and we organize the Holi and Diwali festivals. So we have about 2,000 people joining for Holi every year. तो सर अब 2019 अगर अगर मैं आपकी जगह होता इन योर प्लेस वुड हैव बीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय करियर. That was when you were called for प्रवासी भारतीय दिवस and you were invited to India. Now जब आपको ये इनविटेशन आया, now how big this event was और आपको क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने, वो थोड़ा बताइए. एंड व्हाट वाज दिस प्रवासी भारतीय दिवस, जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा वो भी बताएं प्लीज. एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर कंट्री से 2 या 3 लोगों को ऐसे इनवाइट करती है एट इट्स ओन एक्सपेंसेस. और एक ये कॉन्ग्रीगेशन होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर सब आते हैं. तो मतलब मुझे इनवाइट किया, तो मुझे वो एयर इंडिया से उन्होंने बुलाया. तो जैसे ही मैं एयरक्राफ्ट से बाहर निकला, उन्होंने कहा कि सर आप श्याम पालीवाल. मैं बोला हाँ. तो उन्होंने कहा अपना पासपोर्ट दे दो. मैं बोला अच्छा ठीक है. तो मैंने कहा फिर ये पासपोर्ट कब आएगा. बोले सर आप चलो आ जाएगा पासपोर्ट. मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही सिस्टम है इनका. स्पेशल इलीट तो ट्रीटमेंट. हाँ, वो मुझे पहली बार पता चला. तो वो मैं उतरा, तो फिर वो बाहर में उन्होंने मेरे को टीका लगाया. तो फिर मुझे उन्होंने वो अपना माला डाली, और वहां पे वो शहनाई भी बजा रहे थे. तो मैं बड़ा खुश हो गया. तो फिर उन्होंने मुझे वो उसमें कार में बिठाया. मैंने उसको नोटिस किया, ये तो आईपीएस ऑफिसर है, ये मुझे एस्कॉर्ट करके जा रहे हैं, क्योंकि उसके साइड में आईपीएस लिखा हुआ था. तो उसके बाद उन्होंने वहां पे वाराणसी हम लोग गए. तो वाराणसी में उन्होंने एक टेंट सिटी बनाई हुई थी. तो उस टेंट के अंदर वहां पे बेडरूम भी था, लिविंग रूम भी था, ड्रेसिंग रूम भी था, टॉयलेट भी थी, और गर्म पानी भी आता था, और वेस्टर्न टॉयलेट थी टेंट के अंदर ही. तो वो उन्होंने बहुत अच्छा टेंट सिटी बनाई थी हमारे रुकने के लिए. तो उसमें मैं लंच कर रहा था. तो मेरे साथ में कोई ऐसे ही थोड़े बुजुर्ग, मतलब लेट 50s ऐसे लंच कर रहे थे. तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप क्या करते हो. देखा मैं यूपी का चीफ सेक्रेटरी हूँ. अरे बाप. मैंने कहा अच्छा. यूपी के, चीफ वो भी यूपी के चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी. यूपी के. तो मैं हैरान. मैंने कहा चलो ठीक है. तो ऐसे ही बात करते फिर वहां पे उस टाइम वो यूपी के मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ थे, वो भी आए हुए थे. और फिर मतलब ऐसा था कि जैसे लंच होस्टेड बाय राज्यवर्धन सिंह राठौर, डिनर होस्टेड बाय सुषमा स्वराज, इस तरह के मतलब प्रोग्राम थे. तो जैसे वो हेमा मालिनी का एक गंगा डांस भी था उसमें, बाय हेमा मालिनी. फिर लास्ट डे में इट वाज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर गिव ए स्पीच. सर और कैसी उसके उस. बाद फिर हमको वो बस में बिठा के, वो उस टाइम वो कुंभ मेला चल रहा था. तो उस टाइम हमको वो बस में बिठा के वो वहां पे इलाहाबाद, संगम अब तो उसका संगम नाम संगम संगम. प्रयागराज हो गया. प्रयागराज. तो प्रयागराज के वीआईपी घाट पे वो कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, इतनी भीड़ लोग हुई है, आई हुई है. वीआईपी घाट पे एकदम वीआईपी स्नान भी करने को मिला. तो इट वाज वेरी नाइस. मैंने कहा यार. और वाराणसी में भी वहां पे वो भोले बाबा, उनके दर्शन के लिए कोई लाइन नहीं, सीधा डायरेक्ट एंट्री. मैं कहा, यार ये तो बिल्कुल एकदम गर्भगृह में एकदम दर्शन किए. इट वाज वेरी नाइस. तो सर ये जब आप आज व्हेन यू लुक बैक से 15 years back the way you started and today whatever you have achieved, सर आपकी नजर में नॉर्मल होगा बट मेरी नजर में तो अमेजिंग जर्नी रही है. एंड दैट इज व्हाई इट वाज अ 2.5 hour long chat with you. सर वेयर डू यू फील कि यू मतलब व्हाट मेड, मतलब कभी आपने सोचा था कि इतने साल में कि ये चीजें भी आप कर पाओगे या हो पाएंगी कभी, कि ब्रूरी भी खोल पाऊंगा, ये भी कर पाऊंगा, रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलूंगा, 16 रेस्टोरेंट हो जाएंगे, एलएनजी का करियर कोर्स बना दूंगा, ट्रेनिंग कोर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. हाँ यार, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था. मतलब ऑलवेज आई लुक फॉर सम प्रॉब्लम एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन, फॉर व्हाटएवर, विद अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. सो अब मुझे यहाँ की बियर पसंद नहीं थी, तो मैंने अपनी 993 वाली बियर ले आया. सो आई डेंट लाइक द ब्लैंड एंड सिमिलर टेस्ट. आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. तो मैंने कहा यार कोई अच्छी बियर होगी. सो आई फाउंड इट इन चेक रिपब्लिक. तो उसको ले आया. वैसे ही इंडियन खाना नहीं मिलता था, तो आई थॉट कि इंडियन रेस्टोरेंट भी खोले जाने चाहिए, उसके भी अप्रिसिएशन होगी. तो वो भी मैंने खोले. तो बेसिकली आई जस्ट व्हेन आई सी इफ देयर इज
problem, I try to find a solution. सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट ऑन योर रडार, अगर आप शेयर कर पाए कि अब कौन सी नई प्रॉब्लम है जो कि आपको मिल चुकी है या आप ढूंढ रहे हो जिसका आप सोल्यूशन निकालोगे? अभी तो यार, अभी तो आई एम नॉट स्टिल क्लियर। अभी अभी तो इतना मैनेज करना भी, अब तो एग्जीक्यूशन का टाइम थोड़ा टफ है, क्योंकि वी हैड वेरी टफ टाइम ड्यूरिंग कोविड। अब तुमको तो पता है, रेस्टोरेंट तो खोल ही नहीं सकते, तो फिर बड़ा मुश्किल था, तो वी हैड लॉट ऑफ लॉसेस। तो अब इसकी रिकवरी फेज चल रहा है। तो बहुत रेस्ट, क्योंकि बार्स भी बंद थे तो बियर भी नहीं बिकी, और रेस्टोरेंट तो वैसे ही बंद, कभी खुले कभी बंद, सो इट वाज क्वाइट टफ टाइम फॉर अस। सो नाउ वी आर इन रिकवरी मोड। तो सर whenever you come through these tough times, how do you handle those tough times? This is personally for me कि यार जब ये ऐसा वक्त आता है, यार सोचा नहीं था कि यार बिल्कुल धंधा बैठ जाएगा, चीजें कर रहे थे, अचानक लोगों की तनख्वाहें हैं, होटल रेस्टोरेंट्स के खर्चे हैं, ये चीजें हैं, तो how did you deal with that problematic phase? व्हेन जब वो रस्सी उलझ जाती है तो उसको सुलझाना पड़ता है। सो वी हैव टू फाइंड अ वे टू अनटाई द नॉट्स। सो अब जहाज पे नॉट्स तो बांधनी भी सीखी थी, खोलनी भी सीखी थी, तो you have to find a way, to reduce your expenses. How can you negotiate with your employee union to, cut costs? How can you renegotiate with your vendors and the suppliers to reduce the cost? So we have to think, a solution-oriented approach. कि अब दुखी होके बैठ जाऊं और कि यार सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, सही सही। so better to have a solution-oriented approach. सर यू हैव योर ओन यॉट एंड यू हैव अ पायलट लाइसेंस एज वेल। ये कहाँ से सर, चलो हम, ये कहाँ से ये शौक डेवलप हो गए यॉट के एंड कि अब पायलट प्लेन भी चलाना है, ये कैसे? क्या है कि जहां मैं रहता हूँ वहां पे सी काफी पास है ना मेरे घर से। तो मैं वो यॉट मरीना में जाता था, तो मैं देखता था यार, ये बिजनेसमैन की भी यॉट है, और ये इसकी यॉट है, ये इसकी फलाने पॉलिटिशियन की यॉट है, ये इसकी है, उसकी है, या कोई हॉस्पिटल का ओनर है, उसकी है। तो मैं यार, मैं तो हुई सी मैन, तो मेरी भी होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि, और फिर मैं ट्रेवल भी करता था नॉर्दर्न यूरोप में, वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वहां पे तो बहुत लोगों की यॉट होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक खरीद लेते हैं। सो आई बॉट इट एंड नेम्ड आफ्टर माय डॉटर, इट्स कॉल्ड नूरी। इट्स अ 41 फीट yacht. It can accommodate 12 people. It has 3 bedrooms ओ and वाओ, 2 toilets. वाओ। Yeah. तो ये तो यॉट हो गया। और सर ये अब जा चलो, पानी में आप हो, ये बिना सेलर। नाउ व्हाट अबाउट ये एयर, ये पायलट लाइसेंस का क्या चक्कर हुआ कि आप प्लेन भी चलाते हो? Actually क्या हुआ कि मेरे को पता चला कि if you do like 40 hours of flying, then you can get a private pilot license. अभी क्या होता है कि अभी पैसे तो हैं ही ना अभी। That time I sold my company, तो करने को ज्यादा कुछ था नहीं, सेलिंग का कोई वो नहीं था, प्रेशर की भाई पैसे खत्म हो गए तो जहाज पे जाना है। तो कुछ करना था, तो मैंने सोचा यार ये भी है, ये भी करके देख लेता हूँ। इट वॉज काइंड ऑफ ए चाइल्डहुड ड्रीम। जब भी घर पे छत पे बैठता था तो हवाई जहाज को आसमान में देखता था, तो सोचता था कि कभी मैं भी हवाई जहाज उड़ाऊंगा। सो बिकॉज ऑफ दैट चाइल्डहुड मेमोरी, चाइल्डहुड ड्रीम, आई वांटेड टू डू इट, सो आई डिड इट। वाओ सर, दिस इज अबाउट योर हॉबीज डन। सर अब आते हैं सोशल वेलफेयर के ऊपर कि डूइंग फॉर द सोसाइटी, डूइंग फॉर मैरीटाइम फ्रेटर्निटी। नाउ आपने 2011 उस टाइम जब फेसबुक नया नया आया था या था पहले से, यू स्टार्टेड दिस पेज कॉल्ड जॉब शिप्स ऑन फेसबुक जिसके आज की डेट में 86,000 फॉलोअर्स हैं उस पे। नाउ व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? और मतलब 86,000 लोग जुड़ गए कुछ तो, कैसे, क्या किया आपने ऐसा? I just wanted to create a community for seafarers where they can share their, experiences with different companies, so they can give a feedback on the companies that they sail with. क्योंकि अभी हमारा जो seafaring community है बहुत fragmented है, उसमें knowledge sharing इतनी नहीं होती है. So if somebody is getting exploited in some Iranian company, or West African company, then other people should know about it, and then they should not join that company. So I just wanted a free sharing of information on this platform, so that people can get together and have a free flow of information, so that they can make the right choice. Wow. And today 86,000 people are there on this platform. Amazing journey, sir.
कैप्टन श्याम सर, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि दैट योर जर्नी हैज डेफिनेटली इंस्पायर्ड मी, एंड सिंस आवर लास्ट वीक चैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट यू टू लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स कि यार मैं आज इनका इंटरव्यू करने वाला हूँ, और ही इज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. फाइंड न्यू प्रॉब्लम्स, गिव अस न्यू सॉल्यूशंस, and our best wishes are with you. Thank you, sir, for joining us. Thank you very much. Thank you, Praneeth. Thank you.